નમસ્તે નમસ્તે કચરો ના ફેંકો રસ્તે. મારું નામ પંકજ છે અને આમ તો આ પરિવાર સાથે જોડાયા પછી એવું થાય કે આખું વિશ્વ આપણું પરિવાર છે. મારા પરિવારમાં બધા છે, પણ એમાં મારી પત્ની અને મારી નાની દીકરી ખુશી, અમે 3 જણ પુનાદરામાં રહીએ છીએ છેલ્લા 5 વર્ષથી. મારું પોતાનું ગામ અલગ, અને જ્યારે આ ગામમાં રહી લોકમિત્ર કે લોકોના મિત્ર થઈ અને લોકોની સેવા કરવાનો જે આનંદ છે એ અનેરો આનંદ છે અને મજા આવે છે, એમને ખૂબ ગમે છે. આ લોકડાઉનમાં હું વાત કરું કોરોનાના કારણે, તો 2-3 એવા લોકોની સંપર્કમાં આવવાથી ક્યાંક સેવા કરવાનો મને મોકો મળ્યો. એમાં એક મનુષી કરીને એક ભાઈ, જેમના ઘરે હું દૂધ લેવા જઉં રોજ, એમના ઘરે ગેસનો બોટલ ખાલી થઈ ગયો. એમણે કીધું કે પંકજભાઈ, હવે આ લોકડાઉનના કારણે રિક્ષાઓ તો બંધ છે, અમારે ગેસ ભરાવવા માટે ક્યાં જવું? તો ઘણો પ્રશ્ન એમનો હતો. એટલે મને મનમાં એવું થયું કે એક વ્યક્તિના ઘરે આવું છે તો આખા ગામમાં કેટલા ઘરે હશે? અને ગેસના કારણે, આમ તો ગામ એટલે ચૂલા પર તો ચલાવી લે, પણ પેલી આદત એવી પડી જાય કે ભાઈ હવે ગેસ ઉપર જમવાનું બને તો સારું. એટલે બીજા દિવસ ને ત્રીજા દિવસ મને ફરી પાછું યાદ કરાવ્યું કે મનુષ્યએ કે ભાઈ યાર ગેસનું કંઈક કરો ને. કારણ કે મારી પાસે, બધાની પાસે ગામમાં તો બાઇક હોય નહીં. જેની પાસે હોય ત્યાં લઈને જાય, એક ગેસનું બોટલ પકડીને બેસે ને એક ચલાવે, તો 2 જણને તો બાઇક ઉપર જવાય નહીં. કેવી રીતના જવું? એટલે ઘણો મોટો પ્રશ્ન હતો પહેલાં તો. મેં વિચાર કર્યો, મેં એજન્સીમાં ફોન કર્યો અને એજન્સીમાં વાત કરી. એટલે પછી એજન્સીવાળાએ કીધું, પંકજભાઈ, જો તમારા ગામમાં 25 બોટલ જો એક સાથે થાય, ખાલી બોટલ હોય, ભેગા થઈ જાય, તો 25 બોટલ અમે અહીંયા ઓફિસેથી અમારી 25 બોટલ ભરેલી આવે અને તમને આપી દઈએ. એટલે મેં એજન્સીમાં વાત કર્યા પછી આવી રીતના ચર્ચા થઈ ને પછી મેં ગામમાં બધાને મેસેજ કર્યો, SMS કર્યો કે ભાઈ ગેસનું બોટલ જેને પણ ખાલી હોય પંચાયતમાં મને જમા કરાવી જાય અને ગેસનું બોટલવાળો કાલે આવશે, ભરેલો લઈ જજો. હું જ્યારે લિસ્ટિંગ કરવા બેઠો ત્યારે પહેલા જ દિવસે 100 બોટલો આવી ગયા એક જ સામટા. એટલે મારા મગજમાં તો હતું પણ નહીં કે આટલા બોટલ આવશે. મને તો 20-25 જ હતા કે 20-25 બોટલ હશે. બીજા દિવસ જ્યારે ગાડી આવી ત્યાં સુધીમાં તો 130 બોટલ થઈ ગયા. એટલે ગામ લોકો માટે. અને પછી મેં વાત કરી એજન્સીમાં કે ભાઈ હવે 130 બોટલ છે, તમે વધારે બોટલ લઈને આવજો ભરેલા ગેસના. કારણ કે હું તો 25 જ વિચારતો, તમે 25 લઈને આવો તો બીજા બોટલ શું થશે? બધા નારાજ થશે. એટલે એજન્સીમાંથી 150 બોટલ લઈને આવ્યા કે પંકજભાઈ તમે ચિંતા ના કરશો, જો 150 એક સામટા આવશે ને તો પણ આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દઈશું. એટલે એક લોકમિત્ર ગામમાં રહી અને એક નાનકડા વિચારથી લોકોને કેવી રીતના હેલ્પ થઈ શકે. પછી બધા લોકોને હું જ્યારે જોતો હતો ત્યારે ઘણા ખુશ હતા બધા કે તમે ગામ સાથે કોઈ, અમારો એવો કોઈ લોહીનો સંબંધ નહીં, પણ તો છતાં એ લોકોના દિમાગમાં એવું કે ભાઈ કેવી રીતના પોતાનું ગામ ન હોવા છતાં પણ આવી રીતના આપણે લોકોની સેવા કરીએ. પણ આપણે નિસ્વાર્થ ભાવની સેવા હતી. લોકો પણ આપણા પ્રત્યે ઘણા ખુશ અને લોકો ખૂબ ખુશ થયા. પછી મનહરસિંહે મને રાત્રે ફોન કર્યો, પંકજભાઈ તમે ગેસ ભરાયો છે ને અમે તો ભજીયા બનાવ્યા છે, અમારા ઘરે ખાવા આવો. એટલે કેવો આનંદ છે, એ લોકો પણ ખુશ છે ને આપણે પણ ખુશ છે. નિજાનંદ જેને કહેવાય, એ નિજાનંદ પણ આવા બધા કામોથી અમને મળે છે. એવા ઘણા બધા કામો છે કે જે આપણે ગામમાં રહીને કરીએ છીએ. नमस्ते. कभी कभी लगता है कि जो हमारे फ्रेंड है, जो हम साथ में जो पढ़ते थे, वो कहीं ऑफिसर बन के घूम रहे, कोई अच्छी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, तो वो भी कभी कभी बोलता है क्या यहाँ ये पढ़ा रहे के ये काम करने का, कुछ तो तेरे पास तो बहुत सारा टैलेंट है, तू गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी दे सकता है, तू पढ़ा लिखा है, तो तू गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करता है? तो मैं इनको ये बात समझाता हूँ कि भाई ये तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने लिए जो कुछ एक बॉक्स में जो फिट हो जाना है वो मुझे पसंद नहीं है. और ये जो काम है वो लोगों के लिए काम है कि हम दूसरों को खुश करें. हम तो खुश होंगे ही, क्योंकि दूसरे जब खुश होंगे तो हम क्यों खुश नहीं होंगे. तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो गांव में हमने किए हैं जो हमको बहुत खुशी देती है. तो खुशी वाला काम है तो बस. और दूसरे पैसे ज़्यादा मिलेंगे लेकिन खुशी नहीं मिलेगी, तो खुशी नहीं मिलेगी तो ये पैसा क्या काम का. तो मुझे लगता है कि ये लोक मित्र सही है, मैं लोगों का मित्र बन के रहूँ.
मेरा गांव में फ्रेंड सर्कल बहुत है, पूरा बच्चे से लेके बूढ़े तक सब कुछ मुझे जानते हैं। पंकज भैया हो, इतना प्यार से वो वेलकमिंग करते हैं हमारा। पंकज भाई क्या आपको पानी चाहिए, आपको जो भी कुछ चाहिए तो आप मेरे घर से ले जाइए। कोई भी सीजनेबल फ्रूट आता है तो वो बोलते हैं पंकज भाई हमारे घर से आप लेके जाओ। वो खुद कभी कभी घर पे देने के लिए आते हैं। उनकी जो सब्जियां जो उनके घर होती है तो वो भी हमारे घर देखने के लिए आते हैं। तो हमारे दिमाग में जो है कि गांव गरीब है, गांव में हम कुछ देने के लिए गए हैं, लेकिन ये नहीं है। हम गांव हमको कुछ देता है, गांव हमको कुछ सिखाता है। हम तो गांव में सिखाने के लिए तो गए नहीं है। मैंने ये क्लियर पहले किया था, हमारे हाथ में कोई जादू की लकड़ी तो है नहीं कि हम ऐसे घुमाएंगे। हमारे कंचन दादा बहुत अच्छी बात ये बोलते थे कि जादू की लकड़ी ऐसे घुमाएंगे और पूरा गांव बदल जाएगा। हम बदलने के लिए नहीं गए, लेकिन खुद में भी थोड़ा बदलाव आया और गांव में भी बदलाव आया। टॉयलेट बने हैं गांव में स्ट्रीट लाइट बनी है गांव में लाइब्रेरी बनी है, गांव में अवेयरनेस बहुत सारी आई है। गांव में पहले से तो बहुत सारी अवेयरनेस है गांव में, तो आनंद आता है। क्योंकि 500 टॉयलेट एक साथ जब गांव में बनता है, कोई भी घर में टॉयलेट ना होने की वजह से गांव में बहुत सारे झगड़े भी होते थे, कहीं बहन को अनसिक्योरिटी भी फील होती थी। अब ये सब कुछ नहीं है। बूढ़े लोगों को दूर जाना था टॉयलेट के लिए, अब वो अपने घर में ही टॉयलेट बनाए तो वो घर में ही टॉयलेट यूज़ करते। तो वो उनको देख के हमें बहुत खुशी मिलती है। तो फिर गांव में जब मैं रहता हूँ तो गवर्नमेंट की भी बात आती है कि गवर्नमेंट की क्या क्या योजनाएं जो है। एक बार मैं बैठा था तो मुझे लगा कि विधवा पेंशन मुझे शुरू करवाना चाहिए पूरे गांव में। तो मैं जब गांव में मैंने लिस्टिंग करी तो पूरे गांव में 120 महिला थी जो उनके पति मर चुका है। तो गवर्नमेंट उनको हर महीने 1250 देती है, उनको प्रोत्साहन राशि कि उनको उनके घर में कोई खाने पीने का नहीं है, उनका खुद के लिए कुछ पैसा देती है, जैसे वृद्धा पेंशन भी देती है। तो उनका जो 12 डॉक्यूमेंट जो करवाना है, क्योंकि बहनों कभी कभी गांव में रहता है तो नहीं ये सब कर पाते। लेकिन मैं जब रहता हूँ वहाँ पर तो उनके घर में जाके ये बात बताता हूँ कि ये आपको ये लाना चाहिए, ये लाना चाहिए, ये कागजात लाना चाहिए, पंचायत में मिलेगा, ये तालुका में से मिलेगा, ये मामलतदार में से मिलेगा। तो ऐसे 12 तरह के डॉक्यूमेंट इकट्ठा करवा के फिर मैंने सबमिट करवाए। तो अभी तक 17 बहनों का विधवा पेंशन शुरू हो गया गाँव में। तो वो पूरी बहनें जो माजी है वो बहनें वो सब खुश है कि आपकी वजह से हमारे गांव में इतने सारे विधवा पेंशन शुरू हो रहा है। क्योंकि उनको मालूम भी नहीं था पहले कि विधवा पेंशन है, लेकिन कैसे लिया जाए गवर्नमेंट में से। तो बस ये छोटी छोटी जो मुझे तो ये छोटी ही लगती है, लेकिन उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर महीने 1250 आता है तो उनको कभी दवाई है, कहीं बाहर गाँव जाना है, कभी उनको बच्चों के लिए कुछ करना है, तो ऐसा काम करते हैं। तो उनको जो खुशी में देखते हैं उनको खुशी होती है तो हमको भी खुशी होती है। मेरी बेटी के लिए तो मैं कभी कभी लगता है कि हम थोप देना नहीं चाहिए बच्चों के ऊपर कि ये तू बन। क्योंकि मेरे पापा ने भी सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा बनेगा। और मैं जब पढ़ता था तो मुझे लगता है मैं प्रोफेसर बनूंगा, शिक्षक बनूंगा, लेकिन मैं नहीं हूँ। वैसे तो अभी पढ़ाता हूँ गांव में बच्चों को भी, और पढ़ाने लायक भी हूँ। मैं बाल गीत करवाता हूँ, ये सब बहुत सारी एक्टिविटी मैं करवा सकता हूँ बच्चों के साथ। तो मुझे तब लगता है कि नहीं, मैं शिक्षक हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं यंगस्टरों को भी पढ़ा सकता हूँ। तो वो मुझे थोड़ा नहीं होता है, लेकिन तो मुझे वो लगता है कि नहीं, जो नेचुरली जो होगा वो होगा। कभी कभी मैं बोलता हूँ कि मेरे बच्ची को मैं पायलट बनाऊँगा, लेकिन होगी कि नहीं होगी मुझे मालूम नहीं है। और कैसे, लेकिन एक विचार ये है कि मेरी बच्ची कुछ अच्छी बने। दो है ये, तो एक बाजू ये भी है और एक साइड ये भी है। तो भगवान की मर्जी है तो कि क्या बनेगी, और उनकी खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर जाएगा कि वो क्या बनेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक आपने कहा बालगीत करवाते हैं, कोई बालगीत सुनाएंगे? दो या तीन लाइन भी, जो आपकी प्रिय बालगीत हो या कोई भी, मतलब कोई भी गीत। नाना छोकरा, नाना छोकरा, नमे नमावी शीश, नमे नमावी शीश, आशीष अमने आपजो, आशीष अमने आपजो, ओ मोटा जगदीश, ओ मोटा जगदीश, ओ मोटा जगदीश। नमस्ते।